Good morning, students. Welcome to Path Online Tutorials. Today we will start next exercise, exercise 12.2. As till now, we have done some questions related to formula of circumference of circle, that is 2 pi r, and area of circle pi r square. Today we will learn some new formula and some basics. Out of these basics, some you have studied in 9th and some you will study now. First of all, see this figure. This is a circle with a center O, OA and OB are radii of this circle. And you can see clearly that these two radii and arc AB, these two radii and arc AB are dividing the circle into two parts. And both of these parts, see this part is bounded by arc and two radii, and this part again is bounded by two radii and arc AB. तो सर्कल के ऐसे पोर्शन जो दो रेडियस और एक आर्क से बाउंड होते हैं, ऐसे पोर्शन को हम सेक्टर ऑफ द सर्कल कहते हैं. जैसे ये जो शेड मैंने करी है, इसको हम कहते हैं सेक्टर. अगेन अगर आप ध्यान से देखोगे कि ये जो दो रेडियाई हमने ड्रॉ करी हैं, ये पूरे सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. एक पार्ट बड़ा है, एक छोटा है, दोनों के दोनों सेक्टर्स है. जो छोटा पार्ट होता है उसको हम कहते हैं माइनर सेक्टर, और जो बड़ा पार्ट होता है उसको कहते हैं मेजर सेक्टर. दोनों रेडियस सेंटर पे जो एंगल बनाती है उसको जनरली हम सेंट्रल एंगल कहते हैं. सपोज ये सेंट्रल एंगल थीटा है, तो ये तो कंसेप्ट था सेक्टर से रिलेटेड. अब इसके बेस पे कुछ फॉर्मूले हैं. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल. एज वी नो दैट circumference is the length of boundary of any figure. So circumference of sector. सर्कमफ्रेंस ऑफ सेक्टर में दो तो रेडियाई की लेंथ आ रही है r प्लस r, एक लेंथ आ रही है आर्क की, ये लेंथ, ये आर्क ऑफ द सर्कल है, ये दूसरा पोर्शन बना रही है. तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हमको निकालनी पड़ती है आर्क ऑफ सेक्टर, जिसका फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई r. So arc of the sector is theta upon 360 degree into 2 pi r, where theta is the central angle, that is the angle which the two radii are making at the center. तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेक्टर निकालना है तो एक तो इसमें आ गई दो रेडियाई 2r प्लस लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई r. Second formula is, can you find the area of this sector? Yes, definitely we can find the area of the sector, and the formula for area of sector is
theta upon 360 degree into pi r square. These are the two major formulae which we will use in exercise 12.2. Now let us learn what are segments. Do you know what is chord of a circle? As we have done in chapter circles, chord is a line which has its end points on circle. Suppose this is a line, its end points are A and B. A and B are its end points. So AB is the chord. As you can observe that this chord is dividing the circle into two parts. One is smaller and one is bigger. And these two parts are called segments. The smaller one is called minor segment and the bigger one called major segment. So we can say that segment is the part of the circle which is bounded by one chord and arc of the circle. This is the chord and this is arc of the circle. Now again, there are formula related to circumference, that is perimeter of segment and area of segment. Suppose this is minor segment and we want to find what is its circumference or perimeter. How can we find it? इसकी circumference find करने के लिए हम कुछ basic trigonometric concepts का use करेंगे. O is center of the circle and OA, OB are radii of circle and the central angle is theta. Now can you tell the type of a triangle AOB? In triangle AOB, AO is equal to BO. So this is an isosceles triangle. अब अगर माइनर सेगमेंट की हमको सर्कमफ्रेंस पता करना है तो आर्क AB और कोड AB इन दोनों की लेंथ पता होनी चाहिए. आर्क AB की लेंथ कैसे पता करें, कोड AB की लेंथ कैसे पता करें, आर्क कोड AB की लेंथ कैसे पता करें? देखो आर्क जो AB है इसकी लेंथ पता करने के लिए तो हम सेक्टर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. ये पूरा AOBA सेक्टर बन रहा है और AB इस सेक्टर की आर्क है. तो लेंथ ऑफ द आर्क हम सीधा लिख सकते हैं थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर. And how can we find length of AB? If you can see that AOB is isosceles triangle in which theta and R have been given. Isosceles triangle की एक प्रॉपर्टी होती है इक्वल साइड वाले वर्टेक्स से अगर हम अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो
तो ये परपेंडिकुलर अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। साथ ही साथ जिस वर्टेक्स से ये एंगल डाला है उसको भी बाइसेक्ट करता है। तो ये एंगल हो गए θ/2 एंड θ/2। अब परपेंडिकुलर डालने के बाद थोड़ा हम और ऑब्जर्व करें तो AOD इज राइट ट्रायंगल। AOD एक राइट ट्रायंगल है और इसमें एंगल AOD इज इक्वल टू θ/2 है। एंगल AOD θ/2 है। AO इज इक्वल टू R है। अगर ऐसा है एक एंगल और एक साइड गिवन है तो हम इस ट्रायंगल में हर साइड की लेंथ निकाल सकते हैं। हमको AB की लेंथ निकालनी है एंड AB इज डबल ऑफ AD। अगर AD की लेंथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं तो AB की लेंथ ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। अब अगर मैं इस एंगल को कंसीडर करूं, एंगल AOD को, θ/2 को, तो इसके केस में अपोजिट साइड परपेंडिकुलर है और OD इज द बेस और मैं AD यानी परपेंडिकुलर की लेंथ निकालना चाहता हूं। तो इसके लिए मैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकता हूं? व्हेन आई वांट टू फाइंड परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज हैज बीन गिवन। AO इज हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में जो रिलेशन है वो है साइन थीटा। तो साइन, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, वी कैन से दैट साइन θ/2 इज इक्वल टू AD अपॉन AO। So AD upon AO is equal to sin θ/2, and AD is equal to AD, we have to find it, and AO is equal to R. So from here AD is equal to R sin θ/2। अगर AD R sin θ/2 है तो AB क्या हो गया? 2AD, that is 2R sin θ/2। तो AB की लेंथ हमने निकाल ली है और आर्क की भी लेंथ हमने निकाल ली है। तो इसके बाद पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू θ/360 into 2 pi r plus length of AB. Length of AB is 2r sin θ/2. So this is equal to, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम ये भी कह सकते हैं 2r दोनों में कॉमन है, 2r इंटू थीटा इंटू पाई अपॉन 360 डिग्री प्लस साइन θ/2। तो ये हो गया फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट। तो बहुत इजी था, जो हमने डिराइव किया है विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद एंगल हाफ हो गया, साइड हाफ होगी, हाइपोटेन्यूज गिवन है, साइन का यूज किया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ से AD की वैल्यू आ गई, AD की वैल्यू आ गई तो इसका डबल AB है, AB की लेंथ आ गई। उसके बाद आर्क की लेंथ हम पहले ही निकाल चुके थे सेक्टर के फॉर्मूले से।
तो इस फॉर्मूले को हम क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं जहां भी हमको पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट निकालना है, किसी भी सेगमेंट के पेरीमीटर को निकालने के लिए इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ सेगमेंट। हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ सेगमेंट, इसको मैं यहां पे कर देता हूं। एरिया ऑफ सेगमेंट ए बी, शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। अगर हम शेडेड पोर्शन पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करें तो हमको ये पता चल रहा है कि जो सेक्टर ए ओ बी है, ये जो पूरा सेक्टर है, इस सेक्टर में से ट्राइंगल ए ओ बी का एरिया अगर माइनस कर दें तो वो जो एरिया आएगा वो होगा एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल। So area of segment of circle is equal to area of sector minus area of triangle AOB। अब एरिया ऑफ सेक्टर तो हमको पता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है AB, AB हम निकाल चुके हैं, इसका जो एरिया होगा वो यही होगा ना, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट OD। AB हम निकाल चुके हैं, बस एक काम और करना है, हमको OD की वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू कैसे निकालें? अब ट्राइंगल AOD को देखें, इन राइट ट्राइंगल AOD θ/2 एंगल है तो OD हो गया बेस, हाइपोटेन्यूज गिवन है, बेस और हाइपोटेन्यूज में जो रिलेशन है वो हो गया cos। cos θ/2 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है OD जो हमको निकालना है, हाइपोटेन्यूज है R, तो OD इज इक्वल टू हो गया क्या, R cos θ/2। OD हमने निकाल लिया, जो हाइट है ट्राइंगल की। AB हम पहले ही निकाल चुके हैं, जो बेस है ट्राइंगल का, तो हम एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। सारी चीजें अब इसमें पुट करते हैं। So area of segment of circle is equal to area of sector theta upon 360 degree into pi r square minus area of triangle AOB 1/2 into base AB into height OD is equal to हो गया theta upon 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर माइनस 1/2। AB इज 2r sin θ/2 and OD is r cos θ/2। So it is equal to theta upon 360 degree इंटू पाई आर स्क्वेयर माइनस 1/2 r इंटू आर स्क्वेयर। और एक फॉर्मूला है 11th में जो 10th में यूज नहीं होता, लेकिन इस फॉर्मूले को डेवलप करने के लिए हम उसका यूज कर सकते हैं। 2 sin θ/2 cos θ/2 होता है sin थीटा। टू साइन θ/2 cos θ/2 की वैल्यू होती है साइन थीटा। दिस यू विल लर्न इन नेक्स्ट क्लास, क्लास 11th, बट हियर वी कैन यूज इट टू डेवलप द फॉर्मूला। आप फॉर्मूले को इस फॉर्म में भी यूज कर सकते हो, इस फॉर्म में भी यूज कर सकते हो, जैसा ठीक लगे, जैसा
आपको कैलकुलेशन करने में इजी लगे वैसा यूज कर सकते हो। दोनों फॉर्मूले इक्वली एप्लीकेबल है। अब बस इस फॉर्मूले को थोड़ा सा जो है सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि आर स्क्वेयर दोनों में कॉमन है। आर स्क्वेयर को कॉमन ले लेते हैं। आर स्क्वेयर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। तो ये जो फॉर्मूला हमने डेवलप किया है सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए, इस फॉर्मूले को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं।